Now we are starting with new chapter, that is 12th standard biology first chapter, that is related with the paper 1 botany, that is reproduction in lower and higher plants. Okay, so we will start with our first chapter, that is reproduction in lower and higher plants. Okay, so now we will see this topic, that is starting with the topic. There is a one definition, that is a reproduction. Now what's the meaning of a reproduction? It is similar and difference on the basis of animal and plant, दोनों के अंदर भी थोड़ा difference है. Okay, so reproduction is a production of young ones like a parents. Okay, so reproduction is an essential process and it leads to the continuation of species as well as to maintain the continuity of the life. Each organism has its own particular method of reproduction. Now what's the meaning of reproduction? Production means, so production of young one like a parent. तो जो parents हैं वो उनके जैसे ही similar young one का formation कर रहे हैं, and that process is called it as a okay. So reproduction is a, and this one is a very much essential process because it leads to the continuation of species. यानी कि लाइफ जो भी है इस वर्ल्ड के अंदर या तो अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ है, so that life will be divided into so many different type of species. तो वो species का continuation होने के लिए भी ये reproduction help करेगा, as well as each organism has its own particular method of reproduction. हर एक organism का reproduction method भी अलग अलग type के होते हैं. In some of the organism it is asexual, in some of the organism it is sexual. Okay, so now we will see that. So all these methods are generally fall into a two category. The main one, first one category is asexual reproduction, and the second one, that is sexual. Now what is the meaning of asexual reproduction? When there is a no gamete formation, जहाँ पर मेल का गैमेट्स और फीमेल का गैमेट, ओके, ऐसे दोनों भी गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन, दैट इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के लाइक यंग वन का फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंपल एग्जांपल अगर हमने प्लांट में लिया तो प्लांट के अंदर हम लोग कटिंग करते हैं, यानी कि आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि हम लोग प्लांट्स का जो ब्रांच होता है उसको कट करते हैं. आइए आर्टिफिशियल, तो हमने उस प्लांट के ब्रांच को कट किया और फिर उसको हमने कहीं तो भी प्लांट को और जो भी वो ब्रांच था उसको सॉ कर दिया सॉइल में. सो अल्टीमेटली उससे नया प्लांट का फॉर्मेशन. एग्जांपल दैट इज हिबिस्कस के लिए हम लोग ऐसे नॉर्मली करते हैं. So that is a one type of sexual reproduction, but artificial. ऐसे कुछ पार्ट में स्पोर फॉर्मेशन कहीं पर होता है, बाइनरी फिशन होता है. So these are the different type of organs. Now what's the meaning of sexual reproduction? So you can see in this picture, ये जो पार्ट है ये sexual reproduction. Now what's happening in that sexual reproduction? जो भी फीमेल का पार्ट है, ओके, यहाँ पर क्या होगा, जो भी फीमेल का पार्ट है, you can see that female reproductive part, that is oval, consist of oval. ओवरी के अंदर ओवल है, जो पॉलन ग्रेन है मेल का गैमेट यहाँ पे डिपॉजिट होगा और फिर यहाँ से जनरेटिव सेल और फिर जो भी ट्यूब के थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू जो गैमेट ये फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर होगा और यहाँ पर फिर एंडोस्पर्म और फिर सीड का फॉर्मेशन होगा फ्रूट के अंदर. So that is nothing but a one type of a sexual reproduction where a male and female gamete, male और female gamete का क्या होगा, union. So now we will see that in the detail. So उसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा detail. Now we will starting with a 1.1 asexual reproduction in term of a plant. Okay, asexual reproduction in term of plant के बारे. Now what's the meaning of asexual reproduction? As I already said, does not involve that asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or a sex. यानी कि अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंगे, जो हमने इसके पहले छोटा सा वीडियो देखा, तो वहां पर हमने क्या देखा, सो प्लांट के अंदर मेल गैमेट होता है, दैट इज अ पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट होता है ओवल, दोनों का फर्टिलाइजेशन दैट इज यूनियन होता है, एंड आफ्टर दैट फिर वहां पर जाइगोट और फिर आगे सीड का फॉर्मेशन. But if it is not take place,
यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है. So this type of reproduction is called it as a asexual reproduction. Now we will see that in the detail. इसके अंदर फिर आगे क्या. Now that it is a process, okay, reproduction, asexual reproduction is a process resulting in a production of genetically identical progeny from a single organism and inherit the genes of a parent, and such a morphologically and genetically identical individuals are called clones. So यहाँ पर देखो एक मेन वर्ड दिया है कि नॉर्मली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों के जीन्स अलग अलग होते हैं, फिर उससे जो नया चाइल्ड मिलता है उसके अंदर कुछ अलग ही फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं. जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल देखोगे, तो यहाँ पे देखो ये स्पाइरोगारा सिंगल. तो इस स्पाइरोगारा के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जीन्स है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, कलर है, ऑल द थिंग, ये पूरे क्रोमोसोम पे. सो अल्टीमेटली अब यहाँ पर जब फ्रैगमेंटेशन हुआ तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म तीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखो डिवाइड. सो अब क्या होगा, इसके अंदर क्रोमोसोम तो इसी ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स के जो है, सो ये जो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए हैं, इंडिविजुअल फॉर्म हुए हैं, ये पूरे के पूरे 100% जेनेटिकली जेनेटिकली यानी कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम इनके पेरेंट्स से इनका सिमिलर हो. एंड सो नॉर्मली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे ही हुआ, तो वही यहाँ पे दिया है. सो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी, यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो जेनेटिकली 100% क्या होता है, सेम ही होता है. और ये सिंगल ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं, और उसी सिंगल ऑर्गेनिज्म के जितने भी जीन्स होते हैं वही उस नए ऑर्गेनिज्म में जाते हैं. सो ये 100% मॉर्फोलॉजिकली यानी कि पूरे कलर्स में, साइज में, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि ये जो स्पाइरोगारा है, सो इससे जो तीन इंडिविजुअल फॉर्म हुए, ओके, डॉटर फॉर्म हुए, ये पूरे के पूरे कलर में, जेनेटिकली यानी कि जीन्स के कंटेंट में भी क्या है, तीनों सेम है. सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ क्लोन. ओके, सो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली क्लोन्स का फॉर्मेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन्स? सो जहां पर रिप्रोडक्शन से जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो उसके पेरेंट से 100% मॉर्फोलॉजिकली यानी कि ऊपर के कलर, कैरेक्टर्स वगैरह, एज वेल एज जेनेटिकली यानी जीन्स में भी क्या होगा, सिमिलर होगा. सो दिस इज कॉल्ड इट एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी को नेम दिया है क्लोन. इसी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया है ये प्रोसेस को क्लोन करके. नाउ organism choose to reproduce asexually by different mode and a way. Okay, so asexual reproduction के फिर अलग-अलग types. Now, which are those types? So the first one type is fragmentation. Okay, now multicellular organism can break into a fragment due to one or other reason. Example, a spirogara. These fragments grow into a new individual. Now you can see in this picture, आपको ये दिख रहा है, देखो स्पाइरोगारा. आपने आई थिंक 11th में नहीं, सॉरी, ये 12th में कोई एक प्रैक्टिकल से पहले था, अब होगा या नहीं मुझे नहीं पता. सो वहां पर स्पाइरोगारा देखने आपको, या तो वाटर अगर आप लोग लोगे ना, पॉन्ड का वाटर, और उसके अंदर ऐसे कुछ थ्रेड लाइक पार्ट होता है ग्रीन कलर के, बहुत स्मॉल, और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दैट वाज नथिंग बट स्पाइरोगारा, और आपको बराबर एक्चुअली ऐसे ही फोटोग्राफ. सो दैट वाज स्पाइरोगारा एक्वाटिक, aquatic plant like it, because इसके अंदर chlorophyll like pigments. Now अभी स्पाइरोगारा में देखो क्या हुआ. सो व्हेन दैट स्पाइरोगारा में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ रीजन, ये स्पाइरोगारा क्या हो गया, थ्री पार्ट्स में देखो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो. Now you can see that fragments 1, fragment 2 and fragment 3, and this again that fragments are growing, और ये फिर इनके पेरेंट्स के जैसे ही पूरे के पूरे सिमिलर वैसे ही फॉर्म. सो यहाँ पर कि कोई भी गैमेट नहीं लगा, पेरेंट्स भी सिंगल लगा. So this type where the fragments are formed and these fragments are now grow into a new individual like a parents. So this type of reproduction is called as a asexual reproduction, and the name is called as a fragmentation, जो कि स्पाइरोगारा. नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पार्ट में जाएंगे. ओके,
यीस्ट यीस्ट पाउडर पाव या तो ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। अगर आपके घर में भी अगर होगा तो अल्टीमेटली अगर माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोग देख सकते हो। अगर आपने कुछ हमारे यहाँ शुगर का सोल्यूशन अगर बना, शक्कर और पानी का सोल्यूशन लिया, उसके अंदर यीस्ट का पाउडर वगैरह अगर कुछ होगा आपके पास, वो डाल दो, कुछ टाइम के लिए हाफ आवर के लिए उसको छोड़ दो और फिर उसका एक ड्रॉप स्लाइड के ऊपर डालो, कवर स्लिप रखो और माइक्रोस्कोप में देखो, आपको कुछ इस टाइप से ऑर्गेनिज्म वो दिखे, तो जिसके अंदर रिप्रोडक्शन यानी कि बर्डिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट। सो वही हम लोग, now the second type of asexual reproduction, that is budding. Now it is the most common method of asexual reproduction in unicellular yeast. yeast के अंदर होता है और yeast सभी को पता है, हम लोग पाव बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए इसको यूज। सो ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल है। नाउ यूजुअली इट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ फेवरेबल कंडीशन by producing one or more outgrowth, that is bud. जैसे देखो प्लांट्स के अंदर जब नया ब्रांच का फॉर्मेशन होगा तो वो वहां से एक छोटा सा फॉर्मेशन करता है, दैट इज बड। वैसे ही ये जो यीस्ट होता है, इफ दे गेट अ फेवरेबल कंडीशन, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन, सो अगर उनके लिए टेम्परेचर एकदम बराबर जितना उनको चाहिए उतना, एंड दे गेट द इनफ अमाउंट ऑफ फूड, उनको फूड भी अच्छा खासा मिल गया, सो अल्टीमेटली ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर यानी कि टेम्परेचर फूड सब मिल गया, सो ऐसे फेवरेबल कंडीशन में इनके बॉडी के अंदर ऐसे छोटा सा आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है और उस आउटग्रोथ में साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, एंड सो दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बर्ड। नाउ व्हाट हैपेन, दिस बर्ड ऑन सेपरेशन, मतलब ये जो बर्ड है ये फिर सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट होने के बाद फिर से क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। So this type of reproduction, asexual reproduction in a yeast is called as a budding. Okay, so this is called as a budding. Okay, so ये एक पार्ट है जहाँ पर बर्ड का फॉर्मेशन। एनिमल्स के अंदर भी हमने ऐसे देखा, एनिमल्स में हमने जो हमने किंगडम एनिमल या 11th में लिया था, वहां पर हमने कहाँ पे देखा था ये टॉपिक, तो हमने हाइड्रा में देखा। हाइड्रा का स्लाइड अगर आपको 11th में याद आ रहा होगा तो उसके अंदर आपने बर्डिंग वगैरह देखा, उसमें भी बर्ड का फॉर्मेशन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो बर्ड डिटैच होके नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन। ओके, सो बट वो मल्टी सेलुलर था और ये यूनिसेलुलर, तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर फेवरेबल कंडीशन में ये आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है बर्ड, और ये बर्ड डिटैच होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज कॉल्ड एज बर्ड। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ asexual reproduction is called as a spore formation. Okay, spore formation प्लांट्स के अंदर भी होता है। ओके, सो प्लांट्स के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपको पता है कि वहाँ फ्रूट फ्लावर के फॉर्मेशन। नाउ species like Chlamydomonas, you can see in this picture. Okay, आप लोग ये देख सकते हो Chlamydomonas करके। So species like the Chlamydomonas, asexual reproduction occur by flagellated motile zoospore which can grow independently into a new individual, यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल, देखो क्या हो रहा है, पेरेंट ये छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि जूस्पोर, और उनको फ्लैजिलेटेड क्यों बोला है, so you can see that there is a diphlegellate, यहाँ पर देखो ये बिगर पार्ट है फ्लैजिला, जिसके वजह से उनका वाटर के अंदर मूवमेंट वगैरह कहीं पर भी मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोमैडोम। Okay, so in a Chlamydomonas there is a asexual reproduction by flagellated and motile zoospore, यानी कि यहाँ स्पोर का फॉर्मेशन। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, सो जो ऑर्गेनिज्म होता है, देखो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो पार्ट है वो बहुत सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का सिमिलर टाइप का फॉर्मेशन, एंड बट यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन, वहां पर हमने बर्डिंग बोला था, बर्ड, और यहाँ पर वो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। And after that there are other method of asexual reproduction also. So other method of asexual reproduction includes a binary fission which occurs in amoeba. अमीबा के अंदर क्या होता है, सो एक सिंगल अमीबा उनके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को डिवाइड करके दो अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, डॉटर एक पैरेंट, दो पैरेंट डॉटर का फॉर्मेशन करेगा, सो दैट इज अ बाइनरी which occurs in amoeba. then paramecium के अंदर भी होता है वैसे ही,
कोनिडा फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम इसका हम लोग मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड जेमुले फॉर्मेशन इन स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज होते हैं एनिमल्स के अंदर, सो वो स्पॉन्जेस के अंदर जेमुले फॉर्मेशन, ये हमने किंगडम एनिमलिया 11th वाला जो चैप्टर था वहां पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है